رحم اللہ من کرہ الفاتحہ. پوری کلیئرٹی خراب ہو جائے گی اس کو نصاب بھی چالو نہیں اس کا زوم کرنا. مسائل چالو ہوگا نا تب جب ان کا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النور وسفينة النجاة. صلوات حضرت کے ساتھ ابھی ایک مجلس تھی وہاں پہ اچانک بندہ لے گیا کہ مجلس ہے اور اس کی وجہ سے شریف ہو گئے. اس لیے بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے. مومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النور و سفینۃ النجاۃ. اس کے پہلے بھی اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہر دعویٰ دلیل دلیل کی دعویٰ مکمل نہیں ہوتا. جیسے کہ کربلا مولا میں جناب قاسم سے مولا نے پوچھا بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو فرمایا امو جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ تھا جناب قاسم کا دعویٰ دلیل میں. لیکن اس کو دلیل کس نے بنا دلیل کس نے دی؟ اس کو دلیل دی جناب علی اصغر نے. جب تیر کھا کر کے مسکرائے جب تیر کھا کر کے تیز تھا ویسا تیر کہ جس سے گھوڑے کا شکار کیا جاتا تھا جس سے گھوڑا بالکل زخمی ہو جاتا تھا بری طرح ویسا تیر جناب علی اصغر کے گلے پہ لگا. تو جناب علی اصغر نے فوج اشکیا کی طرف دیکھ کے مسکرایا. مسکرا کے بتایا کہ میرے بھائی نے دعویٰ کیا تھا دلیل میں نے دے دی. ہمارے نزدیک جو ہے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اس لیے کہ جب بندہ شہد کھاتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے اور کڑوا کھا لے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے. تو دعویٰ جناب قاسم نے کیا تھا دلیل جناب علی اصغر نے پیش کی. اسی طرح جب رسول اللہ نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النور و سفینۃ النجاۃ کہ میرا حسین جو ہے یہ سفینہ نور کی جیسے جو اس میں سوار ہو جائے وہ نجات پا جاتا ہے. تو اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا 1400 سال کے بعد؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ فرش عزا بچھا کر کے اس دعوے کی دلیل دی کہ یہ کشتی نجات ہے اس میں سوار ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی کشتی نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب اس کشتی میں اس فرش عزا پہ کوئی نہیں آتا یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا فلاں نہیں آتا تو کوئی نہیں آتا اس میں دھیان نہیں دینا بلکہ اس پہ دھیان دینا کہ پانچویں امام کیا فرما رہے ہیں. پانچویں امام نے فرمایا کہ نوح کو یہ گوارا تھا کہ اس کی کشتی میں کتا سور جیسا نجس جانور سوار ہو جائے لیکن اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کی کشتی میں کوئی حرام زادہ سوار ہو. آج حسین کے فرش عزا پہ کوئی کہتا ہم تو وہاں نہیں جاتے ہم تو اس میں نہیں بیٹھتے تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ حسین فقر نوح ہے. حسین برداشت نہیں کر سکتا کسی حرام زادے کو. تو حسین کیسے برداشت کرے گا کہ کوئی حرام زادہ اس میں کشتی میں 5 سفر سے انشاءاللہ جناب سکینہ کی شان میں مجلس ہونے والی ہے. اسی کے حوالے سے ایک جملہ اور پڑھ لوں اس کے بعد مصائب کے جلدی کہ جناب سکینہ کے بارے میں پوچھا گیا. یہ حقیقت کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی کوئی مجلس نہیں پڑھی کہ میں نے ہمیشہ بزرگ علماء کا سنا ہوا سنایا ہے. میری کوئی اپنی پرسنل کوئی تحقیق نہیں کہ میں تحقیق کر کے آتا ہوں. میرے علماء بزرگ علماء جو پڑھتے ہیں میں جو سنتا ہوں اسے وہ آ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. میری کوئی پرسنل تحقیق نہیں. لیکن یہ جملہ میرا پوچھتا ہے کہ جو سوال کیا کہ سکینہ کیا ہے سکینہ کیا ہے سکینہ کہتے کسے ہیں. پہلے یہ سمجھو کہ سجاد کیا ہے. پہلے یہ سمجھو کہ سجاد کیا ہے. سجاد سجدوں کا مالک ہے سردار ہے سید الساجدین. سجاد ہے بس 2-3 جملے ہیں اس میں پھر آپ کو سمجھنا ہے. جناب سجاد جو مالک عطا کریں گے وہ عطا میں آپ کو سنت میں پیش کر دوں گا. سجاد ہے سجدوں کا سردار. ٹھیک ہے سجدوں کا کس کے سجدوں کا؟ میرے اور آپ کے نہیں. شفیع کے مطلب میرے اور آپ کے نہیں. ہم جیسوں کے نہیں. ہم جیسے توتکے کے نہیں.
सजदों अंबिया मासब के सजदों का सरदार, ठीक है। हम जैसे कि मेरे मतलब मेरे जैसे के नहीं, अंबिया के सजदों का सरदार कौन है? कौन है? सज्जाद। तुमने कहा था कुछ नया सुना, सुनो। जनाब सज्जाद कौन है? अंबिया के सजदों के सरदार। हुसैन कौन है? रब्बिल हमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। सज्जाद के रब का नाम है हुसैन। सज्जाद के रब का नाम है हुसैन। सकीना की अजमत समझा, बीबी की अजमत समझा है, ठीक है। सज्जाद कौन है? अंबिया के सजदों का सरदार। हुसैन कौन है? रब्बिल हमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। सज्जाद हुसैन सज्जाद का रब है। सकीना इलाही ज़बान में, सकीना इलाही ज़बान में उस बीबी को कहते हैं जिसके वसीले से सज्जाद के रब की दुआ कबूल। सकीना उस बीबी को कहते हैं इलाही ज़बान में जिसके वसीले से सज्जाद के रब की दुआ कबूल। शहजादी हो, उसने मुझे हमेशा इज्जत दी। सकीना बाबा से अपने दोस्तों के लिए दुआ किया, लेकिन आज मैं अपने दुश्मनों के लिए दुआ करूं कि जनाब गाजी को इस ताबूत का वास्ता, जितने भी मेरे दुश्मन हैं, जितने भी मेरे दुश्मन हैं जो मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं, मेरे साथ मेरे लिए गड्ढा खोदते हैं, मैं गाजी को सकीना की इज्जत का वास्ता देकर के कहूंगा मौला उन तमाम लोगों को करबला की ज़ियारत का। जितने मेरे दुश्मन हैं बीबी सकीना अपने रोजे की ज़ियारत करवाएंगे जनाब अब्बास के सदके में। आज से यही दुआ करूंगा, कोई मेरे लिए बुराई करे, कोई मेरे लिए गड्ढा खोदेगा, मैं उसके लिए गाजी का अलम पकड़ के दुआ करूंगा कि उसकी जागती आंखों से उसे करबला दिखा, उसकी जागती आंखों से उसे सकीना का रोजा दिखा। ये मेरा बच्चा है सामने, इसके सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ, आज के बाद मेरे दुश्मन के लिए भी यही दुआ करूंगा। जब मुझे कुछ पता चलेगा किसी ने कुछ कहा, मैं गाजी के सामने फरियाद करूंगा कि उसने मेरे लिए कुछ कहा है, उसका अजर ये दे कि उसको सकीना का रोजा दिखा। आज के बाद ये दुआ करूंगा, मैं किसी से नाराज नहीं, हर कोई मेरा अपना है, और फर्शेज़ा पे है तो मैं उसका नौकर। इज्जत देने वाली जनाब सकीना है, जनाब ज़हरा है, और हकीकत में इस साल भाई मुझे इज्जत दिया उस बीवी ने। और इज्जत कैसे दिया मैं आपको बता दूं, एक मौजूदा मेरा 8 मुहर्रम का बता दूं, मैंने लोगों को बताया। 6 महीना पहले किसी ने मुझे 2000 रुपया दिया था, उसका कुछ काम था, लॉकडाउन शुरू हुआ, वो पैसा मुझसे खर्च हो गया। उसने 7 मुहर्रम को फोन करके मुझसे कहा कि तुम्हें वो पैसा दिया था, मुझे काम है, वो सामान मेरा ला दो। मेरे होश उड़ गया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं टेंशन में था। मैं आया रिजवी भाई के इमाम बारगाह में, वहाँ आलम गाजी का पकड़ा। मैं बोला मेरा दिमाग नहीं लग रहा है, मैं मसाइब कैसे पढ़ूं, मुझे टेंशन है, मुझे 2000 रुपये की जरूरत है, मौला तू इंतजाम कर। फिर मैं सबीर साहब नंबर के आया, वहाँ भी गाजी के आलम को पकड़ा, दुआ किया। शबलुकिया गया, वहाँ भी आलम को पकड़ के दुआ किया। और उसके बाद फिर मैं अब्बासिया गया, वहाँ मजलिस पर सब जगह मसाइब पढ़ा। 8 मुहर्रम को मैं जब अब्बासिया गया तो वहाँ मुझे एक साहब ने अपने घर पे बुलाया, चाय पिलाई, और चाय पिलाने के बाद मुझे एक लिफाफा देने लगे। मैंने कहा मैं मजलिस का पैसा नहीं लेता, मैं हदिया नहीं लेता किसी से, मेरा रिस्क उससे बता है, उसी से लेता हूँ। उस बंदे ने कहा ये हदिया नहीं है। मैं बोला तो? बोले ये बशारत का पैसा है। मैं बोला मैं नहीं समझा। कहने लगा आप यहाँ मसाइब पढ़ते हैं, ये मेरा हाथ है, मैं अंधा हो जाऊँ झूठ बोलूँ तो? उसने कहा आप मसाइब पढ़ते हैं, मसाइब मोबाइल के जरिया पूरे गांव में एक मोमिना सुनती है, वो गिरिया करती, उसको कल बशारत हुई है कि इसको 2000 रुपये भिजवाओ, इसको 2000 रुपये भिजवाओ, ये परेशान है। और वो लिफाफा अब तक मेरे पास रखा है। यासीन के अब्बा गवाह हैं, उन्होंने मुझे उस बीबी से पैसा ला के दिया, कहा ये बशारत का पैसा, उनको बशारत हुई थी कि आपको 2000 रुपये 8 मुहर्रम को पैसा मुझे मिला है। ये मेरा हाथ ताबूत पे, मैं अंधा हो जाऊँ झूठ बोलूँ तो?
तो मुझे उम्मीद है मेरी बीवी से इज्जत देने वाली को ये मेरा रिलेशन बनाने वाली वही दुनिया से कोई वो नहीं है कि कौन इज्जत दे कौन जलील करे मेरी मालिका ने अपनी जरी पे रिजवान गवाह है ये रिजवान से कसम खिला के पूछना कि जब मैं जनाब सकीना के रोजे पे मसाइब पढ़ रहा था तो औरतों के यहाँ से पर्चा आया कि जो मसाइब पढ़ रहे उससे कहो कि जरी के अंदर मुंह डाल के पढ़े ताकि गिरिया करें। मैंने पौना घंटा बीबी सकीना के जरी के अंदर मुंह डाल के मसाइब पढ़ा, पौना घंटा मैंने मसाइब पढ़ा। वैसे रिजवान गवाह है, कसम खिला रहे उस तक 8 या 7 लोग गवाह हैं इसी मालूमी के दिन के साथ मैंने बैठ के वहां मसाइब पढ़ा और औरतों ने भी गिरिया किया मर्दों ने भी गिरिया किया। इज्जत जो देने वाली है वो इज्जत देती है। लोग ये सोच लें किसी को भी अगर जमीन पे गिराना चाहोगे, अब तक 60 मजलिस से पढ़ चुका हूँ। भाई की सेहत और सलामती के लिए आवाज से बुलंद सलावत। आप लोगों के पैर की जूती की खाक, इज्जत की उम्मीद मेरी शहजादी से, और हकीकत में वो मुझे इज्जत देती है। उसने मुझे ऐसी ऐसी जगह इज्जत दी है कि जहाँ के लिए लोग तरसते हैं। शाम से लेकर के ईरान तक मैंने मसाइब पढ़े हर जगह, हर हरम में। और आज भी इमाम हुसैन का करम है कि एक जगह से पढ़ के आ रहा हूँ और यहाँ पढ़ रहा हूँ। जिस दिन ये नौकरी बंद हो जाएगी उस दिन समझ जाऊंगा मेरी मालिका मुझसे नाराज, और दुआ करूंगा कि ऐसा होने से पहले शहजादी मुझे मौत दे दे। आज उस गरीब का मातम करने बैठे हैं जो करबला से लेकर के शाम तक रोता रहा। सज्जाद ने तारीख के थी कि सज्जाद के आंखों के नीचे जख्म मौला के आंख हो गया था। ये जख्म खून रोने की वजह से हुआ। मेरा मालिक जब भी निकलता था ना मदीने की गलियों से, रोना रोना तुम्हारा काम है, तुम रो ना रो, इसलिए कि ये समझ लो कि जो अब तक सकीना का पुरसा लेना, आज उसका पुरसा लेने के लिए ज़ैनब भी आई है, फातिमा भी आई है, सकीना भी। इसलिए कि जब कोई अपना रुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी का बाप मर जाए तो बेटे को रुलाया नहीं जाता। हम यतीम हो गए हैं आज की तारीख में, हमारा मालिक उस दुनिया से चला। जब मदीने की गलियों से गुजरता सुनत रो करके साहब अपने जानवर मौला फरमाते थे ना रुमाल रख। सवाल का जवाब तूने इसे पानी पिलाया, हाथ छोड़ के कहता था मौला हम शरीयत मोहम्मदी के मानने वाले, हम क्या लोगों प्यासा छुरी जोर से मारने लगा। कभी कभी आपने मैं आपको दिखा दूं, महसूस करा दूं। आप गोश्त की दुकान पे गए हो, आप कहते हो जरा कीमा बना के दे, जब गोश्त के ऊपर छुरी की बात से गोश्त के टुकड़े इधर उधर उड़ने लगते हैं। जब उबाल होने लगे ना गोश्त मौला हाथ जोड़ के कहा मौला मेरे बेटे की शादी है। इमाम के हाथों में आंसू आ गया। कहा मौला मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को सेहरा आप सेहरे का नाम आना था, गरीब को सज्जाद याद आ गया। सज्जाद को अखबार याद आया। इमाम के हाथों से आंसू मेरी का मौला फरमाते तू जा मैं तेरे बेटे की
दुआ कर दूंगा, मुझे क्या बोला, उसने कहा नहीं बोला, आपको तो आना होगा, किया बोला मैं कहा मैं नहीं आ सकता, उसने कहा बोला अगर नहीं आ सकता दुआ करो मेरा बेटा मर जाए। क्या कह रहा है, क्या कह रहा, जवान के मन में इतना आसान नहीं होता, कैसी बात कर रहा है। कहा बोला या तो आओ या तो दुआ करो मेरा बेटा मर जाए। बोला मैं ठीक है मैं आऊंगा तेरे बेटे के सेव से, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला हुक्म करो, तो अपने घर मेरे बाबा को तू अपने घर मेरे बाबा को मजलिस में आऊंगा। उन्होंने कहा बोला हमारा धोखा रखूंगा। उसने अपने घर में मजलिस रखी, इमाम तशरीफ लाए, मसाहब होने लगी। इमाम फरमाते कासिम के मसाहब पर, अकबर के मसाहब पर, मेरे आप के मसाहब पर, मेरे बाबा के मसाहब पर, थोड़ी देर बाद साहिब खाना ने देखा कि इमाम नजर नहीं आ रहे, वैसे भी इमाम आधी रात को बीबी अंगनाई में बैठी थी। आधी रात को मुझे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मैंने ऐसी सिसकियां थी कि थोड़ी देर और बर्दाश्त करती तो मैं मर जाती। कहती मैंने ढूंढना शुरू किया, पूरे घर में ढूंढ गया, कहीं कुछ नहीं मिला। मैंने इबादत पे सजा सकते की हालत में सिसकियां ले, कहती मैंने शाला पकड़ के सजा को उठाया, ऐसी कौन सी मुसीबत आया। मेरे मालिक रूह में कहता था मुझे सकीने का मुझे कौन सा गुना कम करबला से लेके शाम तक
जाता है, चुपचाप से चेहरा देखते देखते कहती है, हाँ मेरे बाबा के साथ हो चुका है। का सकीना प्यास और आगे बढ़ती है ना तो जुबान पे छाले लगने लगती है। वो कहती हाँ मेरे अकबर के साथ हो चुका है। तब सकीना प्यास और ज्यादा बढ़ती है ना तो इंसान इस तरह हो जाता है जैसे पानी से मछली निकाल के बाहर थोड़ी थोड़ी देर में मुंह खोलता है, बंद करता है, सिखा कर मुझे करके रोके रहती है, हाँ भैया मेरे हस्बैंड के इसके बाद बोला तो मत सकीना एक किस्म और होती है, जब प्यार ज्यादा बढ़ती है ना तो चमड़ा चमड़ा गोश्त को छोड़ने लगता है। तो हाँ भैया मुझे मालूम है। उसके बाद मौला फरमाते आखिरी लम्हा जो होता है ना जिसके बाद इंसान मर जाता है, सकीना हड्डियों को टचने की आवाज आती है, अपना